Hello student, today I am going to solve NIS 315 history question paper of April 2022. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. Attempt only one option from section B. See link at description for solved question paper of February and November 2021. Section A 1. Explain the rise in status and wealth of the Holkers around 730s. 1730 के आसपास होलकरों के पद तथा समृद्धि में वृद्धि को स्पष्ट कीजिए. By 730s, their chief Malhar Rao Holkar consolidated his position. He was granted a large share of the Chauth collection in Malwa, eastern Gujarat and Khandesh within a few years. Malhar Rao consolidated his own principality at Indore, from which his successors controlled important trade routes as well as the crucial trading center of बुरहानपुर. 1730 के दशक तक उनके प्रमुख मल्हार राव होलकर ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली. उन्हें मालवा, पूर्वी गुजरात और खानदेश में चौथ संग्रह का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था. कुछ वर्षों के भीतर मल्हार राव ने इंदौर में अपनी खुद की रियासत को मजबूत किया, जहां से उनके उत्तराधिकारियों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के साथ साथ बुरहानपुर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र को नियंत्रित किया. 2. Highlight two economic regions for the peasant uprisings from 716 to 1857 in India. भारत में 1760 ईस्वी से 1857 तक कृषक विद्रोह के पीछे दो आर्थिक कारणों को उजागर कीजिए. 1. Growing burden of taxation. 2. Eviction from land. 1. कर का बढ़ता बोझ. 2. भूमि से बेदखली. 3. Mention any two features of the Simon Commission. साइमन कमीशन के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए. 1. All White Commission to formulate constitutional reforms for India. 2. Did not include any Indian and thus would not fulfill Indian expectation. 1. भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को तैयार करने के लिए सभी श्वेत आयोग. 2. किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया और इस प्रकार भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए. 4. मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द गदर मूवमेंट. गदर आंदोलन के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए. 1. गदर मूवमेंट बिगेन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को. 2. स्टार्टेड बाय सोहन सिंह, बाखना एंड हरदयाल. 1. गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ. 2. सोहन सिंह, भाकाना और हरदयाल द्वारा शुरू किया गया. 5. Analyze the tripartite struggle for political power in northern India between AD 750 to AD 1000. 750 से 1000 ईस्वी के मध्य राजनैतिक शक्ति की प्राप्ति हेतु उत्तर भारत में त्रिपक्षीय युद्ध का विश्लेषण कीजिए. गुर्जारा प्रतिबान इन नॉर्थ इंडिया, पलास इन ईस्टर्न इंडिया and Rashtrakutas in South India were constantly fighting with each other to control Gangetic region is referred as tripartite struggle. उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिबन, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट लगातार गंगा क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, जिसे त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है. और critically examine the progress of science and technology in the Gupta period. गुप्त काल में विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की आलोचनात्मक जांच कीजिए. The most notable among them is an astronomical text called Aryabhatyam, written by Aryabhatta in the 5th century. Aryabhatta was an astronomer and a mathematician. He, for the first time, suggested that the earth rotates on its axis and revolves around the sun and causes eclipse. He was the first to invent zero and the use of the decimal system. Another scholar, Bara Mihira, end of 6th century, was a great astronomer who has written a number of books on astronomy. His work Panchasiddhantika deals with 5 astronomical systems. Brahmagupta, a well-known mathematician, also lived in the Gupta period.
उनमें से सबसे उल्लेखनीय आर्यभट्टियम नामक एक खगोलीय ग्रंथ है जिसे आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने पहली बार सुझाव दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और ग्रहण का कारण बनती है। उन्होंने सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया और दशमलव प्रणाली का उपयोग किया। एक अन्य विद्वान बारहमिहिर एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका काम पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय प्रणालियों से संबंधित है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल में हुए। 6. एग्जामिन द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द राजपूत। राजपूतों के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। A new class of people called the Rajput, such as Chahamanas, Paramaras, Pratiharas, Chandelas, etc. Some historians believe that they were the descendant of various groups of foreign invaders such as Sakas, Kushnas, Hunas, etc., who had been coming to India from northwest during different time of history. These people gradually settled down in the region of Rajasthan and after intermingling with the Indian society emerged as a warrior class. There are others who treat them as a part of the Kshatriya Varna of the Brahmanical system, but today many scholars see a connection between the rise of Rajput class and the extension of agriculture activities in Rajasthan. It is pointed out that with the spread of land grants there was an increase in the number of agriculture settlements. As a result, many local chiefs came to acquire enough financial and political power to set up an independent authority. कई नए वर्ग के लोगों को राजपूत बोला गया, जैसे चाहमान, परमार, प्रतिहार, चंदेल आदि। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक, कुषाण, हूण आदि के विभिन्न समूहों के वंशज थे जो भारत से आए थे। इतिहास के अलग अलग समय के दौरान उत्तर पश्चिम में ये लोग धीरे धीरे राजस्थान के क्षेत्र में बस गए और भारतीय समाज से जुड़कर एक योद्धा वर्ग के रूप में उभरे। कुछ अन्य लोग भी हैं जो उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आज कई विद्वान राजस्थान में राजपूत वर्ग के उदय और कृषि के गतिविधियों के विस्तार के बीच संबंध देखते हैं। यह बताया गया है कि भूमि अनुदान के प्रसार के साथ कृषि बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। नतीजतन कई स्थानीय प्रमुखों ने एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कनिष्क रूल। कनिष्क के शासन के महत्व की जांच कीजिए। Under Kanishka that the Kushan Empire reached its maximum territorial limits. His empire extended from Central Asia to North India and included Varanasi, Kaushambi and Shravasti in Uttar Pradesh. The political significance of Kanishka rule lies in the fact that he integrated Central Asia with North India as part of a single empire. It resulted in the intermingling of different cultures and increase in inter-regional trading activities. Kanishka is famous in history as a great patron of Buddhism, patronized Gandhar and Mathura schools of sculpture. He convened the fourth Buddhist council at Kundalwana. कनिष्क के अधीन कुषाण साम्राज्य अपनी अधिकतम प्रादेशिक सीमा तक पहुंच गया। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैला हुआ था और इसमें उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती शामिल थे। कनिष्क के शासन का राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसने मध्य एशिया को उत्तर भारत के साथ एक साम्राज्य के हिस्से के रूप में एकीकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर मेल हुआ और अंतर क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। कनिष्क इतिहास में बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के गांधार और मथुरा स्कूलों का संरक्षण। उन्होंने कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई। 7. Explain the rise of the Sikh in Punjab between 720 and 745. 1720 तथा 1745 के मध्य पंजाब में सिखों के उदय की व्याख्या कीजिए। The Mughal force suppressed the Sikhs under Banda Bahadur, but this did not put an end of Sikh resistance to Mughal authority. In the 720s and 730s, Amritsar emerged as a center of Sikh activity, mainly because of its preeminence as a pilgrim center. Kapoor Singh, the most important of the Sikh leaders of the time, operated from its vicinity.
He gradually set about consolidating a revenue cum military system. Some Sikh groups also started consolidating themselves as a political force. These activities discouraged the attempt by the Mughal governor of Lahore Suba to set up an independent power base for themselves in the region. First, Abdus Samad Khan and then his son Zakaria Khan attempted to control sovereign power. मुगल सेना ने बंदा बहादुर के तहत सिखों को दबा दिया, लेकिन इससे मुगल सत्ता के प्रति सिख प्रतिरोध का अंत नहीं हुआ। 1720 और 1730 के दशक में अमृतसर सिख गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरा, मुख्य रूप से एक तीर्थस्थल के रूप में इसकी प्रभुता के कारण। उस समय के सिख नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण कपूर सिंह इसके आसपास से संचालित होता था। उन्होंने धीरे धीरे राजस्व सह सैन्य प्रणाली को मजबूत करना शुरू किया। कुछ सिख समूहों ने भी खुद को राजनीतिक ताकत के रूप में मजबूत करना शुरू कर दिया। इन गतिविधियों ने लाहौर सूबा के मुगल राज्यपालों द्वारा इस क्षेत्र में अपने लिए एक स्वतंत्र शक्ति आधार स्थापित करने के प्रयासों को हतोत्साहित किया। पहले अब्दुस समद खान और फिर उनके बेटे जकारिया खान ने संप्रभु सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। द लेटर हाफ ऑफ 18th century saw important developments. Rise of Mysore state under Hyder Ali and Tipu Sultan is worth mentioning. Coming of the East India Company and the conflict between Mysore and the company marked the beginning of a new phase of Indian political scene. Along with political development, the lesson also deals with the new feature of Indian economy, discusses the reason for decline of Indian agriculture and export trade, paving the way of colonial economy. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण विकास हुए। हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधूर मैसूर राज्य का उदय उल्लेखनीय है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आना और मैसूर और कंपनी के बीच संघर्ष भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। राजनीतिक विकास के साथ साथ पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था की नई विशेषताओं से भी संबंधित है। भारतीय कृषि के पतन के कारण और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाले निर्यात व्यापार पर चर्चा करता है। 8. Who was Mangal Pandey? Explain his role in the events of 1857. मंगल पांडे कौन था? 1857 की घटनाओं में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। Mangal Pandey, a sepoy, asked other sepoys to rise against the British military officers and he killed the British adjutant. Mangal Pandey was later arrested and hanged to death. After that, in May 1857, it made the regiment of Indian sepoys shot down the British officers, broke open the prisons, released their comrades and crossed over to Delhi to appeal Bahadur Shah II, the pensioner Mughal emperor, to become their leader. एक सिपाही मंगल पांडे ने अन्य सिपाहियों को ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के खिलाफ उठने के लिए कहा और उन्होंने ब्रिटिश एडजुटेंट को मार डाला। मंगल पांडे को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद 1857 में मेरठ में भारतीय सिपाहियों की रेजिमेंट ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया, जेलों को तोड़ा, अपने साथियों को रिहा किया और पेंशन भोगी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बनने की अपील करने के लिए दिल्ली चले गए। और Why did the wheels of खानदेश रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? एक्सप्लेन। खानदेश के व्हीलों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? व्याख्या कीजिए। British occupation of their territories and the entry of merchants, money lenders and the British administration in these tribal lands curbed the authority of the tribal chiefs. This led the tribal leader to revolt against the British rule and their target of attack were all the outsiders in the tribal territories. The insurrections were suppressed by the British. उनके क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जे और व्यापारियों, साहूकारों और इन आदिवासी भूमि में ब्रिटिश प्रशासन के प्रवेश ने आदिवासी प्रमुखों के अधिकार पर अंकुश लगा दिया। इनसे आदिवासी नेताओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और उनके हमले का लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों के सभी बाहरी लोग थे। विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। 9. डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की मुख्य संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। Hunter Commission 1. Set up in 1882. 2. To review the progress made in education after Wood Dispatch. 3. Conform to secondary and primary education. 4. Primary education control shifted to municipal boards. 5. At secondary 2 stream 1 literary and other
कॉमर्शियल हंटर कमीशन। 1882 में स्थापित। 2 ऊँट के प्रेषण के बाद शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा करना। 3 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा तक सीमित। 4 प्राथमिक शिक्षा नियंत्रण नगर निगम बोर्डों में स्थानांतरित कर दिया गया। 5 माध्यमिक 2 धाराओं में, एक साहित्यिक और दूसरी व्यावसायिक। और डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की मुख्य संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। वुड डिस्पैच एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डिफ्यूजन ऑफ यूरोपियन नॉलेज। 2 फॉर हायर एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 3 hierarchy of schools, vernacular, Anglo vernacular and affected college। 4 growth in aid to private effort in education। वुड डिस्पैच 1 भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार। 2 उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। 3 स्कूलों का पदानुक्रम वर्नाकुलर, एंग्लो वर्नाकुलर और प्रभावित कॉलेज। 4 शिक्षा का क्षेत्र में निजी प्रयासों को सहायता में वृद्धि। 10 What were the important issues raised by the आर्य समाज? एक्सप्लेन। आर्य समाज द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से थे? व्याख्या कीजिए। Important issue raised by आर्य समाज: opposed child marriage, opposed to multiplicity of caste, formation of priest class, wanted a religion based as the techniques of Veda, opposed to conversion of Hindus। आर्य समाज द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में बाल विवाह का विद्रोह, जातियों की बहुलता का विरोध किया, हिंदुओं के धर्मांतरण के विरोध में पुरोहित वर्ग का गठन, वेद की शिक्षाओं पर आधारित धर्म चाहना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सैयद अहमद खान इन मॉडर्नाइजिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने के सैयद अहमद खान की सुधार आंदोलनों में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। Advocated modern education for Indian Muslim, called for study of European science and technology in 1816, former British Indian Association. He asked Muslim brothers to adopt some features of English society like discipline, order, efficiency and high level of education। भारतीय मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की वकालत की। यूरोपीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए बुलाया गया। 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने मुस्लिम भाइयों से अंग्रेजी समाज की कुछ विशेषताएं जैसे अनुशासन, व्यवस्था, दक्षता और उच्च स्तर की शिक्षा को अपनाने के लिए कहा। 11 गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ द बर्लिन ब्लॉकेड। बर्लिन नाकेबंदी की किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। बैन इम्पोज्ड बाय यूएसएसआर ऑन बर्लिन, कटलिंग इट लिंक विथ वेस्टर्न जोन्स। वेस्टर्न एलायंस वांटेड टू इंट्रोड्यूस मॉनिटरिंग रिफॉर्म इन जर्मनी। सोवियत इम्पोज टोटल बैन ऑन ऑल ट्रैफिक, रोड, रेल और वाटरवेज बिटवीन बर्लिन एंड वेस्टर्न जोन्स। ब्लॉकेट वाज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोल्ड वार। पश्चिमी क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को कम करते हुए बर्लिन पर यूएसएसआर द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। पश्चिमी सहयोगी जर्मनी में मौद्रिक सुधार लागू करना चाहते थे। सोवियत संघ ने बर्लिन और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच सभी यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नाकेबंदी शीत युद्ध का पहला बड़ा संघर्ष था। और गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ ट्रूमन डॉक्ट्रिन। ट्रूमन सिद्धांत के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट एम्ड एट लिमिटिंग कम्युनिज्म, कंटेनिंग टू सच एरियाज वेयर इट हैड टेकन रूट्स, नॉट लेट टू स्प्रेड एनी फर्दर। रोकथाम की नीति साम्यवाद को सीमित करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों से युक्त जहां इसने जड़ें जमा ली थीं आगे नहीं फैलने देंगे। 12 एग्जामिन द अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। गुप्त काल में कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों की परख कीजिए। इंस्पायर्ड बाय रिलीजियन, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म गेव impetus to art in Gupta period also. Life-size image of Buddha in copper in Sultanganj. Beautiful image of Buddha at Mathura and Somnath. Finest examples are paintings in Ajanta caves, Nagara style of temples, Devgar of stone in Jhansi. Dedication to Vishnu. धर्म से प्रेरित हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म ने कला को प्रोत्साहन दिया। सुल्तानगंज में तांबे में बुद्ध की आदमकद छवि, मथुरा और सोमनाथ में बुद्ध की सुंदर छवि, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग इसका बेहतरीन उदाहरण है। मंदिरों की नागर शैली, झांसी में पत्थर का देवगढ़, विष्णु को समर्पण। और एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य शासन की प्रशासन व्यवस्था की जाँच कीजिए। Coin Age had aesthetic depiction of rulers of Mauryan Empire, assisted by council of ministers. King took all decisions regarding revenue, law and order, war. King available to official and even common people. Athelstan mentioned 27 superintendent for various economic debt, agriculture, mining, etc.
like employed large number of spy, maintained a huge army, kind supreme availability for civil and criminal courts, city administration conducted by 6 committees members each. सिक्कों में मौर्य साम्राज्य के शासकों का सौंदर्यपरक चित्रण था। मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की। राजा ने राजस्व, कानून और व्यवस्था, युद्ध के संबंध में सभी निर्णय लिए। राजा आधिकारिक और यहाँ तक कि आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक विभागों, कृषि, खनन आदि के लिए 27 अधीक्षकों का उल्लेख है। बड़ी संख्या में जासूसों को नियुक्त किया। एक विशाल सेना रखी। दीवानी और फौजदारी अदालतों के लिए सर्वोच्च उपलब्धता। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों के सदस्यों द्वारा प्रत्येक में किया जाता है। 13. एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ वेरियस मोनोथेस्टिक भक्ति सेंट ऑफ मिडिल इंडिया। मध्यकालीन भारत के विभिन्न एकस्वरवादी भक्ति संतों की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। कबीर, अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंस भक्ति संत, लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन बनारस, हिज पोएम इंक्लूडेड इन आदि ग्रोथ ऑफ 6 गुरु नानक इन पंजाब, धाना फॉर राजस्थान, मोस्ट ऑफ द monotheist was from lower caste, personal experience of bhakti sent with God, refused any formal association with any religion, composed their poem in popular languages. कबीर जल्द से जल्द और सबसे प्रभावशाली भक्ति संत थे। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बनारस में गुजरा। सिखों के आदि विकास में उनकी कविताओं को शामिल किया गया। पंजाब में गुरु नानक, राजस्थान से धन्ना। अधिकांश एकस्वरवादी निचली जाति के थे। भगवान के साथ भक्ति संत का व्यक्तिगत अनुभव था। सभी ने किसी भी धर्म के साथ किसी भी औपचारिक संबंध से इनकार किया। लोकप्रिय भाषाओं में अपनी कविताओं की रचना की। और एक्सप्लेन द वेरियस मीन्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड इन इंडिया। मध्यकालीन भारत में विभिन्न प्रकार की सिंचाई के साधनों तथा उपायों की व्याख्या कीजिए। रैन, वेल्स, रिवर, टैंक्स, कैनल्स, लेक्स, डैम्स, लेक्स and water reservoir as mean of irrigation. In South India, state temple management constructed a number of dam over river for this purpose. Dam on Tungbhadra river by Vijayanagara Empire. Wells pool a common source of irrigation. Persian wheel in Sultanate period. Canal irrigation. Tughlaq built numbers of canals. वर्षा कुएं, नदी, तालाब, नहरें, झीलें आदि के द्वारा सिंचाई होती थी। सिंचाई के साधन के रूप में बांध, झीलें और जलाशय। दक्षिण भारत में राज्य मंदिर प्रबंधन ने इस उद्देश्य के लिए नदियों पर कई बांधों का निर्माण किया। तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य द्वारा बांध, कुएं, पुल सिंचाई का सामान्य स्रोत। सल्तनत काल में फारसी पहिया मुख्य रूप से नहर की सिंचाई की जाती थी। तुगलक ने कई नहरों का निर्माण किया। Beginning with the provincial elections of 1937, trace the developments leading to Indians' freedom. 1937 के प्रांतीय चुनाव से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की घटनाओं का ब्यौरा दीजिए। After 1937 elections, Congress government remained in office for more than 2 years. By end of 1939, all Congress government resigned. Second World War broke out in 1938. War created demand for cloth and food for soldiers. Quantities of food taken out from Bengal. Bengal gripped with famine. Quit India movement launched in August 1942 by Gandhi. Government's property destroyed. 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकारें सत्ता में 2 साल से अधिक समय तक रहीं। 1939 के अंत तक सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध ने सैनिकों के लिए कपड़ा और भोजन की मांग बढ़ गई। बंगाल से भोजन की कई गुना मात्रा निकाली गई। बंगाल अकाल की चपेट में आ गया। अगस्त 1942 में गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जाने लगा। और describe the rise of revolutionaries movement and the left between 1930 and 1934. 1930 तथा 1934 के मध्य क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथियों के उद्भव का वर्णन कीजिए। Punjab and Bengal witnessed revolutionary terrorism. In 1931, total 92 incidents reported with 9 murders. Chittagaon Armory raid. Hindustan Socialist Republic very active in Punjab with 26 incidents in 1930 alone. Socialist ideology with military offensive. Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh adopted socialism. Social equality was enforced in society. M.N. Roy confirmed Marxism in Indian contest. Communist Party of India founded at Taskand.
सुभाष चंद्र बोस चूज मिलिट्री ऑफेंसिव। पंजाब और बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद देखा गया। 1931 में 9 हत्याओं के साथ कुल 92 घटनाएं दर्ज की गईं। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी। अकेले 1930 में 26 घटनाओं के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पंजाब में बहुत सक्रिय थे। सैन्य आक्रमण के साथ समाजवादी विचारधारा। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने समाजवाद को अपनाया। सामाजिक समानता समाज में लागू किया गया था। एम.एन. राय ने भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद की पुष्टि की। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य आक्रमण को चुना। See link at description for solved question paper of February and November 2021. 15. Mention the problems of development in the post-colonial world. उपनिवेशितोर विश्व में विकास की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। During Second World War, great powers recognized equitable distribution of wealth essential to world peace. After 1945, UNO, IMF and World Bank established to manage affairs over traders. IMF distributed loan to weaker countries, development assistance to improvement in infrastructure, social spending for health, education, housing. IMF advises for devaluation, debt crisis in Latin America, Africa and Asian countries. In 1990, more than 60% of Latin Americans did not earn enough to cover basic needs, food, clothing and shelter. Economic domination left most Latin America unable to exercise freedom. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महान शक्तियों को मान्यता मिली। विश्व शांति के लिए आवश्यक धन का समान वितरण। 1945 के बाद यूएनओ, आईएमएफ और विश्व बैंक ने व्यापारियों के मामले का प्रबंधन करने के लिए स्थापना की। आईएमएफ ने कमज़ोर देशों को बांटे कर्ज, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विकास सहायता, सामाजिक खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के लिए। आईएमएफ अवमूल्यन की सलाह देता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों में विकास संकट। 1990 के दशक में लैटिन अमेरिका के 60% से अधिक लोगों ने बुनियादी जरूरतों, भोजन, कपड़े, आश्रय को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं की। आर्थिक प्रभुत्व। अधिकांश लैटिन अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में असमर्थ रहे। और डिस्क्राइब द बैटल फॉर ब्रिटेन एंड द बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन हेतु युद्ध तथा स्टैलिनग्राड के युद्ध का वर्णन कीजिए। वर्ल्ड वार II, बैटल ऑफ ब्रिटेन, ऑपरेशन सेक्शन रिमेन एयर फोर्स कैरियर, एयर अटैक्स ऑन ब्रिटिश port and cities in August 1940. Germany began night raid on London. Britain also counter-attacked on an official indulged in the Second World War. Churchill's powerful speeches kept morale high. Stalingrad in 1942. Hitler continued offensive. In November, Germany arrived in Stalingrad. Soviet troops encircled Serum. On January 31, 1943, German army collapsed. Winter took its toll. द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की लड़ाई, ऑपरेशन सेक्शन एयर फोर्स कैरियर। अगस्त 1940 में ब्रिटिश बंदरगाहों और शहरों पर हवाई हमले। जर्मनों ने लंदन पर रात में छापेमारी शुरू की। ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ और जवाबी हमला किया। चर्चिल के शक्तिशाली भाषणों ने मनोबल ऊंचा रखा। स्टालिनग्रेड 1942 में हिटलर ने आक्रमण जारी किया। नवंबर में जर्मनी स्टेलिनग्राद तक पहुंच गए। सोवियत सैनिकों ने सीरम को घेर लिया। 31 जनवरी 1943 को जर्मन सेना का पतन हो गया और सर्दियों ने अपना प्रभाव डाला। जर्मनी ने युद्ध में 2.5 लाख पुरुषों को खो दिया। 16A ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, पेज 9, मार्क द फॉलोइंग। 1. 2 सिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, वल्लभी एंड सांची। 2. कैपिटल ऑफ सिंधिया, भोसले, होलकर and शिवाजी। 3. The first state to sign the subsidiary treaty in 1798. 4. Cultivation of indigo under Tinkatia system was abolished in 1916 in which place? 5. Leh और capital of Magध। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पृष्ठ संख्या 9 में निम्नलिखित को दर्शाइए। 1. गुप्त साम्राज्य में 2 शहर, वल्लभी तथा रांची। 2. सिंधिया, भोंसले, होलकर तथा शिवाजी की राजधानी। 3. पहला राज्य जिसने सहायक संधि पर 1798 में हस्ताक्षर किए। 4. 1916 में तिनकठिया प्रणाली जिसके अंतर्गत नील की खेती की जाती थी कहाँ से हटाई गई? 5. लेह अथवा मगध की राजधानी। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और
उत्तर को देखें। बी, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप, पेज नंबर 11, मार्क एंड नेम बॉन। दिए गए यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पृष्ठ 11 में बोन को चिन्हित करके नाम लिखिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 17, एग्जामिन द चेंजेस इन सोसाइटी दैट टुक प्लेस अंडर द कॉलोनियल स्टेट। उपनिवेशक राज्य में समाज में आए परिवर्तनों की जांच कीजिए। ब्रिटिश रिप्लेस्ड द वेस्टफुल warlord nobility by a bureaucratic military establishment carefully designed by practical technocrats, which was very efficient in maintaining law and order. A biggest share of the national product was available for landlords, capitalists, and the new professional classes. New upper class no longer kept harem and places, nor did they wear fine muslin and well decorated swords. Government itself carried out productive investment in railways and irrigation. The new elite establishment of Western lifestyle using the English language and English school. Old caste barrier were eased and social mobility increased. The British educational effort was very limited. There were no major changes in village society. अंग्रेजों ने एक नौकरशाही सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा सरदारों की जगह ले ली। देखभाल पूरी तरह से व्यवहारिक टेक्नोक्रेट द्वारा डिजाइन की गई थी, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बहुत कुशल थीं। राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा जमींदारों, पूंजीपतियों और नए पेशेवर वर्गों के लिए उपलब्ध था। नए उच्च वर्ग ने अब हरम और महल नहीं रखे, न ही उन्होंने बढ़िया मलमल और अच्छी तरह से सजी हुई तलवारें पहनी थी। सरकार ने स्वयं रेलवे और सिंचाई में उत्पादक निवेश किया। नए अभिजात वर्ग ने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी स्कूलों का उपयोग करते हुए एक पश्चिमी जीवन शैली की स्थापना की। पुरानी जाति की बाधाओं को कम किया गया और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। ब्रिटिश शैक्षिक प्रयास बहुत सीमित था। ग्रामीण समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और एग्जामिन द करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली की जांच कीजिए। द स्टैंडर्ड कॉइन सिल्वर टंका वेइंग 175 grains. The currency system was, however, bimetallic, there being parallel coin in copper. The Sultanate issued bullion coin and gold issue have also survived. The Lodhis issued a heavy bullion coin 145 grain called Bahloli. Sher Shah Suri established a bimetallic system by issuing a rupee of silver and making the tanka a purely copper coin. The Mughals from Akbar onward continued the same system. Their rupee weighed 178 grains in copper. They minted dams of 323 grain each. In the last years of Akbar, a rupee fetched 40 dams, and this became subsequently the paper value of the rupees. The Mughals also issued gold coins known as mohar and asarfi, but these were not normally used in the market. The Mughal coinage was of great metallic purity and uniformity. मानक सिक्का चांदी का टंका वजन 175 ग्रेन। हालांकि मुद्रा प्रणाली द्विधातु थी, तांबे में समानांतर सिक्का था। सुल्तानों ने शराफा सिक्के जारी किए और सोने के मुद्दे भी बच गए। लोदियों ने एक भारी शराफा सिक्का 145 अनाज जारी किया, जिसे बहलोली कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने 1 रुपया चांदी जारी करके और टांका को विशुद्ध तांबे का सिक्का बनाकर द्विधातु प्रणाली की स्थापना की। अकबर के बाद से मुगलों ने उसी प्रणाली को जारी रखा। उनके रुपये का वजन 178 अनाज था। तांबे में उन्होंने प्रत्येक में 323 अनाज के बांध बनाए। अकबर के अंतिम वर्षों में 1 रुपये से 40 बांध मिले और यह बाद में रुपये का कागजी मूल्य बन गया। मुगलों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जिन्होंने मोहर या सरफी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनका इस्तेमाल आमतौर पर बाजार में नहीं किया जाता था। मुगल सिक्का महान धातु शुद्धता और एकरूपता का था। 18. एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाए वैधता के रूपों की व्याख्या कीजिए। By 1835, Persian remained the official language. Name of Mughal Emperor kept on appearing on coins. Higher gun salute reserved for Mughal depository. Bombay and Calcutta had new architecture, new institutional marked new power, company and various princely state Khan subsidiary alliances. For British protection, native status paid for. Cost of maintaining British troops in case of port and states territory to company. Trial of last Mughal emperor in his own place in 1877.
कंपनी भारतीय सम्राट को अपना अधीनस्थ बनाना चाहती थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली में लगातार हैदराबाद, मराठा, पेशवा, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया, जयपुर, बड़ौदा के गायकवाड़, तांवड़कोर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर सूचीबद्ध होते गए। प्रणाली का सार था ब्रिटिश संरक्षण का वादा, जिसके लिए देसी राज्य निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से भुगतान करते थे। क कंपनी की सेना के एक टुकड़ी के रखरखाव की नकद लागत। ख राज्य के एक भाग कंपनी को सौंपा जाना। ग राज्य का आंशिक या पूर्ण विसैन्यीकरण यानी राज्य के शस्त्र सेना का त्याग। ख कंपनी के अनुमोदन के बिना अन्य राजनीतिक शक्तियों के साथ संबंध और युद्ध पर प्रतिबंध। अंगा सलाह या निर्देश देने के लिए दरबार में कंपनी के रेजिडेंट को रखने की स्वीकृति। जनता के लिए औपनिवेशिक राज्य के प्रतीकात्मक सांस्कृतिक रचना राज्य की दूरस्थ एजेंसियों और रोजाना के अनुभवों के मार्फत की गई। दरोगा और पुलिस कलेक्टर की कचहरी में पटेल, अमीन, पटवारी और कानूनगो। नई अदालतों में ताकतवर लोगों के पक्ष में निर्णय लेते काले कपड़े पहने अंग्रेजी बोलते अनजान आदमी। शहरों में विशाल औपनिवेशिक स्मारक, फ्लैग मार्च करते सैनिकों के दृश्य, अनंत गोरी जाति के सदस्यों के समक्ष देसी समाज के उच्च लोगों को झुकने और नमन करने के नज़ारे भारतीय मानस में औपनिवेशिक शासन की छाप छोड़ने वाले कुछ प्रतीक थे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मिडिवल स्टेट। मध्यकालीन राज्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। सुल्तान रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल पावर began conferring the title. Mughal Empire were governed by Sreen. Non-Muslims were vast majority. They were allowed for freedom. Medieval state was theocratical state. Defense, law and order, revenue collections were primary concerns. आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला सुल्तान था। उपाधि प्राप्त करना शुरू करना। मुगल बादशाह दरगाह द्वारा शासित थे। गैर मुस्लिम विशाल बहुमत में थे। उन्हें स्वतंत्रता से रहने की अनुमति दी गई थी। मध्यकालीन राज्य धार्मिक राज्य था। रक्षा, कानून और व्यवस्था, राजस्व संग्रह प्राथमिक चिंताएं थीं। ऑप्शन 2 17 एनालाइज हाउ कल्चर इज शेप्ड। संस्कृति कैसे आकार लेती है, विश्लेषण कीजिए। कल्चरल एक्सप्रेशंस कनेक्टर्स with religion. Sanchi Stupa for religion purpose. Poetry, music inspired from religion. Saint composes life, react Kabir and religious in. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति धर्म के साथ संबंध रखती है। सांची स्तूप धर्म के उद्देश्य के लिए बनाए गए। काव्य संगीत धर्म से प्रेरणा देते हैं। संत जीवन की प्रतिक्रिया कबीर और धार्मिक रचना करते हैं। एग्जामिन हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन कल्चर। मानव विज्ञानी किस प्रकार संस्कृति को परिभाषित करते हैं, जांच कीजिए। Cultural and social anthropologists study present-day societies, their rituals, beliefs, social custom, etc. An anthropologist studies houses, tools, sports, status, etc. He tries to reconstruct how people lived in past. As objects are physical, it is material culture. सांस्कृतिक और सामाजिक मानव विज्ञानी वर्तमान समाजों, उनके अनुष्ठानों, विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का अध्ययन करते हैं। एक मानव विज्ञानी घरों, औजारों, बर्तनों, स्थिति आदि का अध्ययन करता है। वह पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। चूँकि वस्तु भौतिक, इसलिए वह भौतिक संस्कृति है। 18 एक्सप्लेन हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स। सांस्कृतिक विभिन्न रूपों द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, व्याख्या कीजिए। द बुद्धा's message was quickly accepted by the common people because he spoke in the common language. Prakrit. The Buddhists also adopted a number of religious and cultural practices. The Buddhists suggested that tree worship was identical with the worship of the Bodhi tree at Bodh Gaya. According to Buddhist traditions, the Buddha had meditated sitting under the tree and had attained enlightenment here. Another popular practice was the erection of circular mounds over the remains of the dead as a kind of memory. The relative and associated of the dead offered worship at such mounds. The Buddha's followers adopted this practice and erected stupa or mounds which often contained relics of the Buddha such as his teeth or object he was supposed to have used. The Greek had an old tradition of representing their gods in human form. The Buddhists adopted this tradition as well, depicting the Buddha in an identical fashion.
बुद्ध का संदेश आम आदमी द्वारा तेजी से स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जनभाषा प्राकृत में संवाद किया। बौद्धों ने अनेक धार्मिक और संस्कृत प्रथाएं भी अपना ली और उनके अनुकूल हो गए। बौद्धों ने कहा कि वृक्षों की पूजा बोधगया स्थित बोधि वृक्ष की पूजा के समान है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध ने वहां वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया था और ज्ञान प्राप्त किया था। मृतक के अवशेषों के ऊपर स्मारक के रूप में गोल टीले बनाकर एक अन्य लोकप्रिय प्रथा थी। मृतक के रिश्तेदार और मित्र इन टीलों की पूजा किया करते थे। बुद्ध के अनुयायी ने इस प्रथा को अपना लिया और स्तूप या टीले बनाए जिनमें अक्सर बुद्ध की स्मृति चिन्ह रहते थे, जैसे कि उनके दांत या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में यह माना जाता है कि बुद्ध ने उनका इस्तेमाल किया था। आप अपने देवताओं को मानव के रूप में प्रस्तुत करना यूनानियों की पुरानी परंपरा थी। बौद्धों ने इस परंपरा को भी अपना लिया और बुद्ध को उसी रूप में प्रस्तुत करने लगे। और हाउ कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन टेक्सटाइल्स एंड कॉस्ट्यूम्स एक्सप्लेन। भारतीय वस्त्रों तथा पोशाकों द्वारा संस्कृति कैसे प्रदर्शित होती है, व्याख्या कीजिए। नॉर्दर्न इंडिया पीपल यूज बोथ वुलन एंड कॉटन क्लोथ्स। इन साउथर्न इंडिया विच was a warm climate people wear only cotton. The clothing of men in the warm region consists of an upper cloth and a lower cloth of roughly 1.5 yard. In northern India, men also wear stitched shirt called kurta and trousers known as pajama. The women may either wear a 6 yard unstitched cloth called sari or may wear stitched garments similar to what the men wear called kurta and salwar. The wearing of the sari depends on the cultural traditions of different regions. The production of cotton in India goes back to prehistoric times. Indian textile reflect culture. Everything is important: the colors chosen, the designs, and the occasion it is on. Red represents fertility and is generally worn by the bride on the occasion of her wedding. Orchard and white represent purity and sacrifice and are usually worn by spiritual persons and also by widows. Black is considered inauspicious, although in South Indian pregnant women wear black perhaps to ward off the evil eye. Coloring was traditionally done with vegetable. उत्तरी भारत के लोग ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिणी भारत में गर्म जलवायु वाले लोग केवल सूती कपड़े पहनते हैं। गर्म क्षेत्र में पुरुषों के कपड़ों में एक ऊपरी कपड़ा और लगभग 1.5 गज का निचला कपड़ा होता है। उत्तर भारत में पुरुष एक सिली हुई शर्ट भी पहनते हैं जिसे कुर्ता कहा जाता है और पतलून जैसी पायजामा कहा जाता है। महिलाएँ या तो 6 गज का बिना सिला कपड़ा पहन सकती हैं जिसे साड़ी कहा जाता है, या वे सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं जो पुरुष कुर्ता और सलवार पहनते हैं। साड़ी पहनना विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं पर निर्भर करता है। भारत में कपास का उत्पादन प्रागैतिहासिक काल से होता है। भारतीय वस्त्र संस्कृति को दर्शाते हैं, जब कुछ महत्वपूर्ण है चुने गए रंग, डिजाइन और जिस अवसर पर इसे पहनना जाता है। लाल प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर दुल्हन द्वारा उसकी शादी के अवसर पर पहना जाता है। गेरू और सफ़ेद पवित्रता और बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं और आमतौर पर आध्यात्मिक व्यक्तियों और विधवा द्वारा भी पहने जाते हैं। काले रंग को अशुभ माना जाता है, हालांकि दक्षिण भारत में गर्भवती महिलाएं बुरी नज़र से बचने के लिए काला रंग पहनती हैं। रंगाई पारंपरिक रूप से सब्जी से की जाती थी। See link at description for solved question paper of February and November 2021.